Welcome everybody, welcome back to English classes by Mukhtar sir. I am back with part 3, third part of sentence transformation. Before I proceed, I would like to tell you people that in part 2 we talked about 4 types of sentences like simple, compound, complex and compound complex sentences. In part 3, I will be telling you people about certain fundamentals of sentence transformation. There are certain fundamental methods of sentence transformation. Let's talk about these methods which can be executed to get the job of sentence transformation done. We can transform a sentence from one type into another by employing a certain method. We have got number of methods. Method number 1 is expansion method. Expansion method. Method number 2 is contraction method. Method number 3 is method of replacing. Method of replacing. Let's see how all these methods work, how to employ these methods, what do these methods mean. Let's talk about each of these methods. Let's first talk about expansion method. What do we mean by expansion method? Okay, by expansion method we mean expanding a word or a phrase, into a class. Hence, by expansion method we mean expanding a word or a phrase into a class. एक्सपेंशन मेथड से हमारा मतलब है एक वर्ड या फ्रेज को एक्सपैंड करना, डेवलप करना इनटू ए क्लास, यानी एक वर्ड एक फ्रेज को चेंज करके एक क्लास में बदल देना, इसे हम एक्सपेंशन मेथड कहते हैं. लेटर वी विल सी हाउ विल दिस वर्क, ये काम कैसे करेगा. हियर आई विल टॉक अबाउट सेकंड मेथड. हम दूसरे मेथड की भी बात करेंगे, नोन एज द कंट्रैक्शन मेथड. द सेकंड मेथड इज नोन एज कंट्रैक्शन मेथड. लेट्स टॉक अबाउट कंट्रैक्शन मेथड. Method number 2, contraction method. Expansion method में हमने कहा कि expansion method means expanding, and contraction method में contraction method means contracting, छोटा करना, reducing, contracting a class. एक्सपेंशन मेथड में हमने एक्सपेंड किया था ए वर्ड और ए फ्रेज, एक वर्ड या एक फ्रेज को. लेकिन कंट्रैक्शन मेथड में हम कंट्रैक्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं. कंट्रैक्ट करने का मतलब है, याद रखना, रिड्यूस करना. बाय कंट्रैक्टिंग वी मीन रिड्यूसिंग ए क्लास इनटू ए वर्ड और ए फ्रेज, into a word or a phrase. Hence, by contraction method, we mean contracting, that's reducing a class, एक क्लास को छोटा करके चेंज कर देना, बदल देना, into a word or a phrase, एक वर्ड में या एक फ्रेज में. इसे कहते हैं contraction method. एक्सपेंशन मेथड में हम वर्ड या फ्रेज को बड़ा करके क्लास बनाते हैं, और contraction मेथड में हम क्लास को छोटा करके एक वर्ड या एक फ्रेज में रिड्यूस कर देते हैं. These were the first two methods. Let's talk about the third method, known as method of replacing. ये method of replacing क्या है? रिमेंबर, सबसे ज्यादा जिस मेथड को हम एम्प्लॉय करते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, इट इज द मेथड ऑफ रिप्लेसिंग. द थर्ड मेथड ऑफ रिप्लेसिंग. ये मेथड ऑफ रिप्लेसिंग क्या है? लेट्स टॉक अबाउट इट. बाय मेथड ऑफ रिप्लेसिंग वी मीन replacing a conjunction by some other conjunction with possible change in word order. तो मेथड ऑफ रिप्लेसिंग का मतलब क्या है? इट मीन्स रिप्लेसिंग ए कंजंक्शन बाय सम अदर कंजंक्शन.
एक कंजंक्शन को रिप्लेस कर देना किसी और कंजंक्शन से, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और भी करते हैं इस मेथड में। वो क्या है? विद पॉसिबल चेंज इन वर्ड ऑर्डर। इसके साथ साथ जो वर्ड ऑर्डर हमारे पास होता है, जो वर्ड्स एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, उस वर्ड ऑर्डर को पॉसिबली हम चेंज करते हैं। जितना मुमकिन हो, जहां तक मुमकिन हो, वर्ड ऑर्डर को भी चेंज करते हैं। पहले तो हम एक कंजंक्शन को रिप्लेस करते हैं दूसरी कंजंक्शन से, उसके बाद जो वर्ड ऑर्डर होता है हम उसमें भी पॉसिबल चेंज लाते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द मेथड ऑफ रिप्लेसिंग अ कंजंक्शन बाय सम अदर कंजंक्शन विद पॉसिबल चेंज इन वर्ड ऑर्डर। लेट्स सी हाउ डू ऑल दीज थ्री मेथड्स वर्क। ये कैसे फंक्शन करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। एज फार एज द topic of sentence transformation, as far as the field of sentence transformation is concerned, let's see how do these work. But before I proceed, still I will like to provide you people a little more information that you need to know. इससे पहले कि अब भी मैं sentence transformation के टॉपिक पे जंप करूं, मैं अब भी चाहूंगा कि आपके पास थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं कंजंक्शंस के बारे में एक बार फिर बात करूंगा। कंजंक्शंस, since you know conjunctions are the words that are used to join two words, phrase, clause, sentence, etc. कंजंक्शंस का काम होता है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका काम है ज्वाइन करना। ये वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, क्लॉज और फ्रेज को, फ्रेज और वर्ड को, फ्रेज और सेंटेंस को, इन शॉर्ट इनका काम होता है ज्वाइन करना। अब जो ये कंजंक्शंस हमारे पास हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस दो टाइप्स की हैं। रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे जरूरी पार्ट है, एंड यू नीड नॉट टू मिस दिस इंफॉर्मेशन। आपको ये इंफॉर्मेशन मिस नहीं कर देनी चाहिए। डू वॉच इट केयरफुली। ओके, कंजंक्शंस के दो टाइप्स हैं। एक टाइप को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर्स और दूसरे टाइप को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटर्स। Hence, conjunctions are of two types, coordinators and subordinators. Coordinators, by coordinators we mean coordinate conjunctions, and by subordinators we mean subordinate conjunctions. अब बात करते हैं ये coordinate conjunctions कौन सी हैं, कितनी हैं, etc. etc. subordinator conjunctions कौन सी हैं। Okay, fine. तो सबसे पहले हम बात करेंगे coordinate conjunctions की, यानी coordinators की। कोऑर्डिनेटर्स ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जिनका काम है इंडिपेंडेंट क्लास को, एक इंडिपेंडेंट क्लास को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाना। यानी इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाने के लिए जो ज्वाइन करने का काम कंजंक्शन करती है, उस कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटर कहते हैं। That conjunction is known as coordinator, जो independent clauses, equal ranked clauses को मिलाने का काम करे। Such a conjunction, यहाँ पे जो ऐड करने का काम करती है conjunction is called coordinator। उसी को coordinator कहते हैं। Okay, fine। अब हम एक एग्जांपल लेंगे coordinator conjunction की। For example, he ate food and I took इन दिस वेरी पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने दो क्लासेस लिखे हैं। ही एट फूड एक इंडिपेंडेंट क्लास है, आई टुक टी अगेन एक इंडिपेंडेंट क्लास है। फाइन, इनको मिलाने के लिए कंजंक्शन एंड इस्तेमाल की गई है। ये जो एंड है इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाता है, हेंस ये एक कोऑर्डिनेटर है। ये एक कोऑर्डिनेटर है। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। इस कंपाउंड सेंटेंस का ये जो क्लास है ही एट फूड, सिंस दिस इंट्रोड्यूस द सेंटेंस, क्योंकि ये इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मेन पार्ट सेंटेंस का है, वी कॉल दिस क्लास प्रिंसिपल क्लास। इस क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और ये जो दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास है, हालांकि ये कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन क्या है कि ये इंट्रोड्यूस हुआ है एक कोऑर्डिनेटर से, ताकि ये ज्वाइन हो सकता है हमारे प्रिंसिपल क्लास के साथ। तो ये जो दूसरा क्लास हमारे पास है, इंट्रोड्यूस विद द कोऑर्डिनेटर, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लास। इसे हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास। यहां पे जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुई है, याद रहे ये एक कोऑर्डिनेटर है। इसका काम है इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करना। अब जो कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास हैं, कोऑर्डिनेटर्स जो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए वी हैव डेवलप्ड एन एक्रोनिम नेम्ड फैनबॉयज। हमारे पास एक वर्ड है फैनबॉयज। हम इस एक वर्ड को याद रख के अपने कोऑर्डिनेटर्स को याद रख सकते हैं। वाई एंड ऑन ऐसा है कि एवरी लेटर ऑफ दिस वर्ड, हर एक लेटर जो इस वर्ड का है, स्टैंड्स फॉर ए कोऑर्डिनेटर। एफ स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड,
N stands for nor, but B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. So these are our coordinators. जहां जहां पे हमें ये वाली कंजंक्शंस मिलेंगी हम कहेंगे कि शायद इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन किया गया होगा, क्योंकि इनका काम ही है इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करना। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो ये है हमारे कोऑर्डिनेटर्स। इसके बाद हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटर्स। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट सबऑर्डिनेटर्स। सबऑर्डिनेटर्स कौन सी कंजंक्शंस हैं? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस किन कंजंक्शंस को कहते हैं? बट रिमेंबर, साथ साथ में मैं आपको बोलूंगा, वी हैव नेम्ड द क्लासेस एज वेल। अभी मैंने एक कंपाउंड स्टेटमेंट की एग्जांपल दी थी, उसमें जो मेन क्लास हमारा था, जो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा था, वी कॉल्ड दैट द प्रिंसिपल क्लास। और जो कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट हुआ हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास था, वी नेम्ड दैट अ कोऑर्डिनेट क्लास। ओके, लेट्स सी सबऑर्डिनेटर्स। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो ज्वाइन करती हैं एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ एक डिपेंडेंट क्लास को। सो जब डिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होती है, व्हेन डिपेंडेंट क्लास इज ज्वाइंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड द कंजंक्शन दैट्स बीइंग यूज्ड, वो कंजंक्शन जिसका इस्तेमाल किया जाए इज नोन एज सबऑर्डिनेटर, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटर। ख्याल रहे, एक जो डिपेंडेंट क्लास होता है इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड टू द सबऑर्डिनेटर। वो हमेशा एक सबऑर्डिनेटर यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है ताकि वो ज्वाइन हो सके एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ। और ऐसे अगर दो क्लासेस हमारे पास हैं, एक सेंटेंस है जिसमें ऐसे दो क्लासेस हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड दो he failed। तो यहां पे जो दो क्लासेस हमारे पास हैं, जो एक क्लास हमारा है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है। द सेकंड क्लास हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद दो विच इज अ सबऑर्डिनेटर। ये एक सबऑर्डिनेटर से स्टार्ट हुआ है। बिसाइड्स दिस इज अ डिपेंडेंट क्लास, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इन एडिशन टू दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद अ सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर से स्टार्ट हुआ है। अब ये जो कंजंक्शन है इसे तो हम सबऑर्डिनेटर कहेंगे क्योंकि डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिला रहा है। नंबर 1। नंबर 2, यहां पे जो ये हमारा मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है इस सेंटेंस को, इंडिपेंडेंट क्लास जो मेन क्लास हमारा है, इसे हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। और जो ये दूसरा डिपेंडेंट क्लास हमारे पास है, जो कि ये सबऑर्डिनेटर से शुरू हो रहा है, डिपेंडेंट क्लास है, तो इसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास। ओके फाइन। तो ये है कि सबऑर्डिनेटर्स कौन सी कंजंक्शंस हैं? ये ऐसी कंजंक्शंस हैं जो डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाती हैं। ख्याल रहे, डिपेंडेंट क्लासेस हमेशा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं विद सबऑर्डिनेटर्स से, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास को मिलना होता है, ज्वाइन होता है एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, और ये मुमकिन नहीं है विदाउट सबऑर्डिनेटर्स, बिना सबऑर्डिनेटर्स के। और एक ऐसा क्लास जो सबऑर्डिनेटर से स्टार्ट हो इज नोन एज अ सबऑर्डिनेट क्लास, उसे कहते हैं एक सबऑर्डिनेट क्लास। अब जो सबऑर्डिनेटर्स हमारे पास हैं, कितने सारे हैं, क्या क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट दीज एज वेल। इनके बारे में भी बात करते हैं। सबऑर्डिनेटर्स हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिटिव सबऑर्डिनेटर्स हैं विच इंक्लूड ऑल क्वेश्चन वर्ड्स प्लस दैट प्लस व्हाइल। ओके, हमारे पास इसके बाद एडवर्जेटिव सबऑर्डिनेटर्स हैं विच इंक्लूड ऑल्दो, though, even though. We have got alternative subordinators as well, like if, unless. We have got elative subordinators as well, like because, since, hence,
एटसेट्रा, ये सारे हमारे सब ऑर्डिनेटर्स हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बोल दूं, जब मैंने सब ऑर्डिनेटर्स की बात की, मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारे सब ऑर्डिनेटर्स हैं, एडिटिव सब ऑर्डिनेटर्स हैं, ये जो हमारे सब ऑर्डिनेटर्स हैं, ये एडवर्जेटिव सब ऑर्डिनेटर्स हैं, ये जो हमारे सब ऑर्डिनेटर्स हैं, अल्टरनेटिव सब ऑर्डिनेटर्स हैं, ये जो हमारे सब ऑर्डिनेटर्स हैं, दीज आर रिलेटिव सब ऑर्डिनेटर्स। ये सब मैं क्या कह रहा हूं, लेट मी क्लियर इट लिटिल, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि ये मैं क्या कह रहा हूं। फर्स्ट कि आप इन सारी कंजंक्शंस को नोट करो, सब ऑर्डिनेटर्स को। सेकंड, इसके बाद आप देखो कि मैंने किस बेसिस पे कहा, ये नेम मैंने किस बेसिस पे इनको दिए नेम्स, इज आई नेम दी सर्टेन कंजंक्शंस, मैंने इन कंजंक्शंस को नाम दिए हैं, like additives, adversatives, alternatives, relatives, etc., etc. Why have I done so? Remember, जो हमारी conjunctions होती हैं, conjunctions in the field of sentence transformation, जब हम sentence transformation की बात करते हैं, we divide these conjunctions, हम इन conjunctions को divide करते हैं into parts, into categories में, on the basis of their functions, on the basis of their functions, इनके काम की बेसिस पे हम इन कंजंक्शंस को, ये जो कंजंक्शंस हैं, आर डिवाइडेड, हम इन्हें डिवाइड करते हैं, आर डिवाइडेड इनटू टाइप्स में, इनटू कैटेगरीज में, हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं इनटू सर्टेन कैटेगरीज, इनटू सर्टेन टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, कि ये कंजंक्शंस कैसा काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव गॉट कोऑर्डिनेटर्स, हमारे पास कोऑर्डिनेटर है। अब कोऑर्डिनेटर्स में कौन सा कोऑर्डिनेटर कैसा काम करता है, कौन सी फंक्शन करता है, उस बेसिस पे हम कोऑर्डिनेटर्स को डिवाइड करते हैं इनटू सर्टेन कैटेगरीज। नेम, सबसे पहले हम इन टाइप्स का पहली जो टाइप है, पहली जो कैटेगरी है, उसका नाम है एडिटिव्स। एडिटिव्स मैंने सिर्फ एडिटिव्स लिखा, मैंने एडिटिव कोऑर्डिनेटर्स नहीं लिखा, सब ऑर्डिनेटर्स नहीं लिखा। आई विल रादर से एडिटिव कंजंक्शंस, क्योंकि एडिटिव्स जो हैं, जो हमारी एडिटिव कंजंक्शंस है, इसमें हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं और इसमें हमारे सब ऑर्डिनेटर भी हैं। यानी एडिटिव कंजंक्शंस इंक्लूड कोऑर्डिनेटर्स एज वेल एज सब ऑर्डिनेटर्स, दोनों तरह की कंजंक्शंस हैं जो एडिटिव कंजंक्शंस हैं। किस बेसिस पे हमने इन्हें एडिटिव कहा है, लेट मी टेल यू पीपल, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू पीपल वन थिंग। Have a look at this chart. I have drawn this chart for you people. आप इस चार्ट को एक बार देखो, व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने यहां पे क्या किया है। आई हैव डिवाइडेड कंजंक्शंस इन कैटेगरीज, मैंने कंजंक्शंस को कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एंड आई हैव नेम्ड दोस कैटेगरीज, मैंने उन कैटेगरीज के नाम दिए हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने कंजंक्शंस लिखी है कि यहां पे कंजंक्शंस के नाम मैंने कौन कौन से दिए हैं। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एडिटिव्स, द सेकंड टाइप इज कॉल्ड एडवर्सेटिव्स, थर्ड टाइप हैज बीन नेम्ड अल्टरनेटिव्स, फोर्थ टाइप हैज बीन नेम्ड रिलेटिव्स। ओके, इन एडिटिव्स वी हैव गॉट कोऑर्डिनेटर्स, लाइक इन दिस कॉलम, इस कॉलम में देखो हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स है एडिटिव्स में, एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो वी हैव गॉट एडिटिव सबऑर्डिनेटर्स एज वेल। लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉलम, वी हैव गॉट क्वेश्चन वर्ड्स प्लस दैट प्लस व्हाइल, एंड अगेन एडवर्सेटिव्स की अगर बात करेंगे, वी हैव गॉट कोऑर्डिनेटर्स इन दिस कॉलम, वी हैव गॉट सबऑर्डिनेटर्स इन दिस कॉलम। अगेन टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स, वी हैव गॉट कोऑर्डिनेटर्स in this column and subordinators here and on. Again, talking about relatives, we have got coordinators as well as subordinators. सबसे पहले आप इस चार्ट को ड्रा करो अपनी नोटबुक पे, उसके बाद मैं बोलूंगा इस चार्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे आगे अपने टॉपिक में, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के। Let me tell you people, this is a pretty difficult topic, ये काफी मुश्किल टॉपिक है। Hence I have divided certain methods, मैंने कुछ methods डिवाइस किए हैं ताकि ये जो I can simplify this very pretty difficult topic into a simple one, ताकि मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकूं। तो ये चार्ट आप ड्रा करो, मैं इसे डिस्प्ले करूंगा कुछ देर के लिए। हैव अ लुक, क्लोज लुक, ड्रा इट ऑन योर नोटबुक्स।
Okay, if it's done, let me put it down. Let's move back to our topic कि conjunctions को हम डिवाइड करते हैं into types, into certain categories on the basis of their functions. अब मैं बात करूंगा कि एडिटिव कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटर्स हो या सबऑर्डिनेटर्स हो, हम इन कंजंक्शंस को एडिटिव्स क्यों कहते हैं? एडिटिव कंजंक्शंस का मतलब है ऐसी कंजंक्शंस जो ऐड करने का काम करे। एडिटिव, ऐड में से, वर्ड ऐड में से लिया गया है एडिटिव। सो ये ऐसी कंजंक्शंस हैं जो से हमारे पास दो क्लास हैं, यानी दो आइडियाज हैं। अगर हमारे दो आइडियाज को ऐड करने का काम कर रही है कोई कंजंक्शन, तो उस कंजंक्शन को हम कहते हैं एडिटिव। एडिटिव का काम होता है, एडिटिव कंजंक्शन का, कि ये दो डिफरेंट आइडियाज को ऐड करें। अब कोऑर्डिनेटर है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस अगर हमारे पास है जो डिफरेंट आइडियाज हमें दे रहे हैं, उन्हें ऐड करने के लिए हम एडिटिव कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो डिफरेंट आइडियाज दे रहे हैं, उन्हें ऐड करने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होगी उसे हम एडिटिव सबऑर्डिनेटर कहेंगे। सो एडिटिव्स का मतलब है ऐसी कंजंक्शंस जो आइडियाज को ऐड करने का काम करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप, नोन एज एडवर्जेटिव्स। जो दूसरी टाइप हमारे पास है एडवर्जेटिव्स, उसकी बात करते हैं। लेकिन एक बार फिर आई विल रिपीट, in additive coordinators we have got and as well as not only but also, and additive subordinators we have got question words plus that plus y. Okay, fine. Let's talk about adversatives, the second type. एडवर्जेटिव्स यानी एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटर्स एज वेल एज एडवर्जेटिव सबऑर्डिनेटर्स। एडिटिव हमने देखा ऐसी कंजंक्शंस थी जो दो डिफरेंट आइडियाज को ज्वाइन कर रही थी। एडवर्जेटिव्स में क्या होता है, यहां पे भी दो आइडियाज को ज्वाइन किया जाता है। आइडिया नंबर 1, आइडिया नंबर 2 इन्हें ज्वाइन किया जाता है। लेकिन यहां पे ये जो आइडियाज होते हैं इनका एक फीचर होता है। फीचर क्या होता है, ये आइडियाज एक दूसरे के कंट्रारी होते हैं, एक दूसरे के कंट्रारी, एक दूसरे के मुखालिफ ये दो आइडियाज होते हैं। अब इस तरह अगर कंट्रारी आइडियाज, मुखालिफ आइडियाज, कंट्राडिक्ट होने वाले आइडियाज को ज्वाइन किया जाए, तो जो कंजंक्शन ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होगी, कंट्रारी आइडियाज को अगर ज्वाइन करना है, और जो कंजंक्शन कंट्रारी आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होगी, उसे हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अब हमारे पास एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, एडवर्जेटिव सबऑर्डिनेटर्स भी हैं। यानी अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं जो कंट्रारी आइडियाज दे रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होगी, हम उसे एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटर कहेंगे। और अगर एक डिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो कंट्रारी आइडियाज दे रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होगी, उसे हम एडवर्जेटिव सबऑर्डिनेटर कहेंगे। तो ओके, ये था एडवर्जेटिव्स। एडवर्जेटिव्स ऐसी कंजंक्शंस है हमारे पास, कोऑर्डिनेटर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेटर्स, जो दो कंट्रारी आइडियाज को ऐड करते हैं, मुखालिफ आइडियाज को ऐड करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप। तो इस बेसिस पे कंजंक्शंस की, इन फंक्शंस की बेसिस पे कंजंक्शंस को हमने कैटेगराइज किया है इनटू 4 कैटेगरीज, एंड द थर्ड टाइप इज नेम्ड अल्टरनेटिव्स। Alternatives, अब you know, can be coordinators as well as subordinators. ये coordinators भी हो सकते हैं, subordinators भी हो सकते हैं। फाइन, लेकिन इनका काम क्या है, ये कौन सी फंक्शन करते हैं? ये भी दो आइडियाज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जिन दो आइडियाज को ये ज्वाइन करते हैं, वो दो आइडियाज अल्टरनेट आइडियाज होते हैं। उन दो आइडियाज के बीच में एक ऑप्शन सा हमें ये कंजंक्शंस देती है। यानी ऑप्शनल आइडिया जो हमारे पास हैं, जब हमारे पास अल्टरनेट आइडियाज होंगे, हमें दो आइडियाज में से एक आइडिया से पिक करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया जाता हो, तो ऐसे आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए जो कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल होगा, हम उसे अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर कहेंगे। और अगर एक क्लास डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट है, यानी सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल होना है, तो ऐसे सबऑर्डिनेटर को हम अल्टरनेटिव सबऑर्डिनेटर कहेंगे। सो इस बेसिस पे कि अगर दो अल्टरनेट आइडियाज को ज्वाइन किया जा रहा है, जो कंजंक्शन इस्तेमाल होंगी, विल कॉल दोज अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। Fine. Let's talk about the fourth type, known as elatives. फोर्थ टाइप के बारे में बात करेंगे, इससे elatives के।
इलेटिव्स में अब अगेन वी कैन हैव कोऑर्डिनेटर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेटर्स। हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स भी हो सकते हैं, सबऑर्डिनेटर्स भी। लेकिन इलेटिव्स जो कंजंक्शंस हैं, इनका काम क्या है? इनका काम भी है एक से ज्यादा आइडियाज को ज्वाइन करना। लेकिन जिन आइडियाज को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ये आइडियाज हमें दिखाते हैं एक रिलेशन। इन आइडियाज के बीच में एक रिलेशन होती है, वो रिलेशन होती है काज इफेक्ट वाली। यानी एक आइडिया हमें काज बोलता है, वजह बोलता है, और दूसरा आइडिया हमें बोलता है उस वजह का रिजल्ट क्या हुआ है, उसका इफेक्ट क्या है। सो काज इफेक्ट वाले आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होती है, उस कंजंक्शन को हम इलेटिव कहते हैं। अब ये जो हमारे पास आइडियाज हैं, यानी दो क्लासेस हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं तो कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल होगा। उस कोऑर्डिनेटर को, जो इंडिपेंडेंट क्लास को काज इफेक्ट, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लासेस को काज इफेक्ट रिलेशन दिखाने वाले ज्वाइन करेगा, उसे हम इलेटिव कोऑर्डिनेटर कहेंगे। और अगर एक क्लास हमारा डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये रिलेशन ये दिखाती है, रिलेशन इन दो आइडियाज में है, दो क्लासेस में, कि ये काज इफेक्ट दिखाते हैं, तो जो सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल होगा ज्वाइन करने के लिए, उसे हम इलेटिव सबऑर्डिनेटर कहेंगे। Now I think we are ready to go through the topic sentence transformation. I will be soon back with part number 4, and in that very particular part we will start our topic. We will straight away move to the topic sentence transformation, and we will start transforming a sentence from one type into another. Okay, see you people soon, inshallah.